Thank you, Mehul bhai. So a very warm good afternoon to all of you. It is indeed my pleasure and honor to address this August audience on a topic which is so very important and relevant for everyone, more so for the gems and jewelry industry. Before I start, I wish all of you are safe along with your families, friends, colleagues in this COVID-19 crisis. So with this, I'll start. I'll take your permission to share my screen so that I can start the presentation. So I hope the screen is visible to everyone. I'll be taking this session in English, Hindi, Gujarati because I've been told कि अगर हिंदी गुजराती में ज़्यादा कर पाऊँ तो it will be useful for a lot of audience. So I'll be mixing the languages. काफ़ी लोगों की queries भी हमें आई है on the mail. So while preparing the presentation, we have tried to ensure कि ज़्यादातर queries हम presentation में ही address कर पाए. However, इसके अलावा अगर कोई भी queries है जो unaddressed रह गई है, so you can write in the chat box and if we have time, if time permits, we will try to address them. Else मेरा email ID already invite के ऊपर था और last slide में भी आएगा. You can send a mail on my ID and we'll try to get back to you as soon as possible. A lot of people I see are just joining. So maybe let us give a few more seconds so that we don't have interruption in between. Just bear with me, just a few seconds. All the participants, if they can keep their screen on mute, as well as if you have a mobile phone, kindly keep it on silent mode so that we don't have distractions in between. Okay, so let us start the session now. So the webinar is going to cover the TCS provisions, जिसके लिए already Mehul bhai ने बताया, and a lot of people are very keen to know about those provisions जो 1st October से applicable हो रहे हैं. We will talk a bit about specified financial transactions because वो बहुत एक emerging और नया area है, and because of that a lot of people have been receiving a lot of notices recently. तो आगे जाके कौन से transactions उसमें cover हो रहे हैं. Equalization levy on e-commerce, हालांकि ये 1st October से नहीं है, already 1st April से kick in हो गया है, but उसके related हमें काफी queries भी आती रहती है, so we thought we'll cover that in this session. E-invoicing, another very major aspect which is kicking in from 1st of October unless it gets extended at the last moment. Important due dates under GST. Way forward in refunds under inverted duty structure. Again, ये एक area है जिसके ऊपर बहुत सा debate चल रहा है last 1-2 महीने में. और अपनी industry के लिए this is a very, very important aspect because hundreds of crores are stuck up in ITC with the companies which they are not able to claim as refunds. तो उसके रिलेटेड ये सेशन में बात करेंगे और बहुत सी क्वेरीज उसके ऊपर थी कि क्या करना चाहिए ताकि कम आईटीसी एक्यूमुलेशन रहे. So we have tried to also cover a few ideas, thoughts on what companies should be doing on this front.
I think there is some on the screen, there are some disturbances. Let me just reshare the screen again. Okay, so starting with the TCS provisions. TCS stands for टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और ये 1 अक्टूबर से काफी चीजों के लिए एप्लीकेबल हो रहा है। ऐसा नहीं है कि TCS प्रोविजन फॉर द फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है, काफी सालों से TCS प्रोविजंस हैव बीन देयर फॉर अ वेरी फ्यू कैटेगरीज। खास करके आप स्क्रैप सेल करते हो तो उसके ऊपर TCS ऑलरेडी सालों से एप्लीकेबल था। However, the scope of TCS has been expanded in the last budget, और एक्चुअली तो 1 अप्रैल से किक इन होने वाले थे, पर वो 1 अक्टूबर तक बिकॉज ऑफ कोविड एक्सटेंड किए गए थे। सो सम ऑफ द ट्रांजैक्शंस व्हिच विल नाउ अट्रैक्ट TCS में सबसे पहला है फॉरेन रेमिटेंस अंडर लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। सो काफी लोगों को पता होगा कि एज अ रेसिडेंट इंडिविजुअल इन इंडिया अगर आपको फॉरेन कोई भी रेमिटेंस करना है तो वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है RBI की, जिसके अंदर $250,000 पर ईयर का आप रेमिटेंस कर सकते हो फॉर गिफ्टिंग एनीवन, फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, फॉर मेडिकल पर्पसेस आप बाहर भेज सकते हो। हालांकि अभी तक उसके ऊपर कोई TDS TCS नहीं था। नाउ फ्रॉम 1 अक्टूबर TCS इज इंट्रोड्यूस्ड। तो जब भी वो अमाउंट 7 लाख के ऊपर रहेगी ड्यूरिंग ईयर, वंस इट क्रॉसेस 7 लाख, तो TCS जो भी ऑथोराइज्ड डीलर है, जो बैंक है जिसके थ्रू आप रेमिटेंस कर रहे हो, वो आपका TCS कलेक्ट करेंगे और गवर्नमेंट में पे करेंगे। अगर यू हैव अ पेन एंड और आधार कार्ड तो TCS का रेट 5% है, अभी भी 5% है, और 1 अप्रैल 2021 के बाद भी 5% रहेगा। अगर आपके पास पेन या आधार नहीं है तो ये रेट 10% रहेगा। Thereafter सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज, तो उसके अंदर अगेन जो आप टूर ऑपरेटर के पास बुकिंग करवाते हो कोई भी फॉरेन टूर का, और आपके पास पेन आधार है तो 5%, अगर नहीं है तो 10%। ये लाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन गवर्नमेंट का ये था कि दे सॉ दैट अ लॉट ऑफ पीपल आर अंडरटेकिंग फॉरेन ट्रैवल। हाउएवर जो टोटल नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर है उसकी कंपैरिजन में बहुत कम है, यानी फॉरेन ट्रैवल करने वाले बहुत ज्यादा है रिलेटिव टू द नंबर ऑफ पीपल हु पे टैक्सेस एंड फाइल रिटर्न्स। तो इन ऑर्डर टू गेट डेटा कि कौन लोग फॉरेन ट्रैवल करते हैं और वो रिटर्न में क्यों नहीं शो करते, उसके लिए दे हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस TCS प्रोविजंस। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेसेस एंड इन कंटेक्स्ट ऑफ टुडेज डिस्कशन इज द सेल ऑफ गुड्स। तो कोई भी सेलर जिसका लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10 करोड़ से ज्यादा था एंड करंट फाइनेंशियल ईयर में रिसिप्ट्स जो बायर के पास से आता है वो 50 लाख से ज्यादा है, देन TCS कलेक्ट करने की जरूरत है। TCS का रेट बायर अगर पेन और आधार प्रोवाइड करता है आपको तो टेक्निकली 0.1% TCS था, पर कोविड की वजह से टिल 31 मार्च 21 को थोड़ा कंसेशन उसमें दिया है, सो 0.075% विल बी एप्लीकेबल एज TCS। 1 अप्रैल 21 के बाद 0.1% हो जाएगा। इफ द बायर डज नॉट प्रोवाइड यू पेन एंड आधार, तो इन दैट केस 1% का है, जो अभी भी 1% रहेगा और 1 अप्रैल के बाद भी 1% रहेगा। उसके अलावा सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, तो इसके अंदर एक लिमिट दी गई है। अगर इंडिविजुअल या HUF सेलर है तो 5 लाख तक का एग्जेम्पशन है, ओनली अबव 5 लाख TCS कलेक्ट होगा, बट फॉर LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एनी अदर एंटिटी देयर इज नो लिमिट। सो 100 रुपए का भी अगर ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सेल हुआ है, देन द प्लेटफॉर्म ऑपरेटर इज सपोज्ड टू कलेक्ट TCS। जो रेट है, इफ यू हैव प्रोवाइडेड पेन और आधार तो 0.75% मार्च तक है, मार्च के बाद 1% है। इन एब्सेंस ऑफ पेन एंड आधार इट विल बी 5%। अभी ये जितना लगता है उतना सिंपल प्रोविजन नहीं है, देयर आर अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस इन दिस रिगार्ड्स, और उसके ऊपर थोड़ा अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट है कि TCS इज एप्लीकेबल ऑन गुड्स ओनली, सर्विसेज के ऊपर TCS नहीं है। हाउएवर जो टर्नओवर गिनना है 10 करोड़ का,
उसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का टर्नओवर आपको ऐड करके थ्रेशोल्ड लिमिट गिननी है। अगेन नोट दैट टीसीएस लायबिलिटी इज एट द टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। ये पूरा जो प्रोविजन है वो रिसिप्ट के ऊपर है, सेल्स के ऊपर नहीं है। सेल्स की इनवॉइस आप इश्यू करते हो उसके साथ कनेक्टेड नहीं है। TCS applicable if goods sold before October 1st, but payment is received on or after 1st October. तो आपका गुड्स इवन 1 अप्रैल के पहले भी अगर सेल हुआ है, 1 अक्टूबर के पहले यानी 30 सितंबर 2020 तक भी सेल हुआ है, जब ये प्रोविजंस नहीं है एप्लीकेबल, किक इन नहीं हुए हैं, पर उसका भी पेमेंट अगर आपको 1 अक्टूबर या उसके बाद आता है तो उसके ऊपर TCS आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए जितने भी आपके रिसीवेबल्स है वो रिसीवेबल्स का लिस्ट बना के जो भी बायर्स है उसके ऊपर शायद आपको डेबिट नोट रेज करके उनको बताना पड़ेगा कि उतनी एक्सेस अमाउंट उनको पे करनी रहेगी। फॉर द 7 लाख लिमिट जो LRS की लिमिट है या फिर गुड सेल की जो 50 लाख की लिमिट है, वो लिमिट कैलकुलेट 1 अप्रैल से करनी है। अगेन ये एक गुगली है, प्रोविजंस किक इन हो रहे हैं 1 अक्टूबर से। हावेवर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जो एग्जेम्पशन लिमिट गिननी है, वो 1 अप्रैल 2020 से गिननी है। अगेन एक लैक्यूना है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, पर कंजर्वेटिव एक इंटरप्रिटेशन जो है कि ये अमाउंट गिनते समय वो इंक्लूसिव ऑफ GST आपको गिनना है। हालांकि इसके ऊपर लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। It is expected that the government CBDT will come with a circular clarifying a lot of aspects जो आगे की स्लाइड्स में भी हमें देखने हैं कि बहुत से ग्रे एरिया है। पर टू बी ऑन द सेफर साइड, टू बी ऑन अ कंजर्वेटिव साइड, अभी के लिए आपको जो लिमिट गिननी है वो इंक्लूसिव ऑफ GST, ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स गिननी है। प्लीज नोट दैट ये सेल्स जो है उसके अंदर एक्सपोर्ट सेल्स कवर्ड नहीं है, पर एक्सपोर्ट इज फिजिकल एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट्स को एक्सपोर्ट नहीं गिना जाएगा। सिमिलरली ब्रांच ट्रांसफर हो या ट्रांजैक्शन बिटवीन एंटिटीज विद सेम पैन नंबर के अंदर TCS नहीं है, नॉर्मली भी नहीं होता है, पर GST के अंदर क्योंकि बिटवीन द ब्रांचेस भी जो टर्नओवर है वो सप्लाई गिना जाता है, GST लगता है, इसलिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। तो ये इनकम टैक्स का TCS है, तो इनकम टैक्स के अंदर 2 branches of the same company having the same PAN number, उसके अंदर TCS नहीं लगेगा, तो इसमें ये confusion प्लीज मत होना। If the transaction of goods and services is executed with different branches of same party, तो आपकी ऑफिस अगर बॉम्बे में है, आपकी ऑफिस सूरत में है, और सामने जो बायर है उसकी भी ऑफिस सूरत में है और बॉम्बे में है, और मल्टीपल ब्रांचेस के साथ ट्रांजैक्शन होता है, तो सामने वाली पार्टी का सिंगल पैन नंबर में जितनी ब्रांचेस है उसकी टोटल क्यूमुलेटिव अमाउंट आपको गिननी है, नहीं कि ब्रांच वाइज गिननी है। सो अगेन कीप दिस इन माइंड। अगर सेम पार्टी से आपने परचेज या सेल किया है और एक्चुअल रिसिप्ट पेमेंट नहीं हुआ है, एक JB पास हुई है, तो उसको भी रिसिप्ट गिना जाएगा और दोनों पार्टी को खुद की अमाउंट जितनी भी उनकी सेल अमाउंट है उसके ऊपर TCS गिन के सबमिट करना पड़ेगा। TCS to be collected on amount received above 50 lakhs। तो आगे जैसे अपन बात हुई कि 50 lakhs तक का एग्जेम्पशन लिमिट है, पर ये 50 lakhs आपको गिनना है 1 अप्रैल 2020 से, नहीं कि 1 अक्टूबर 2020 से। Law is silent on whether TCS has to be collected on GST component or not। ये बहुत ही कंफ्यूजन चल रहा है और बहुत रिप्रेजेंटेशन भी गवर्नमेंट को हुए हैं इसके ऊपर क्लेरिफाई करने के लिए। जो नॉर्मल TDS प्रोविजंस है उसमें तो पास्ट में गवर्नमेंट का सर्कुलर CBDT का है कि TDS कैलकुलेट करते समय GST अमाउंट को नहीं गिनना है, यानी कि नेट अमाउंट आफ्टर GST के ऊपर ही TDS लगेगा। पर TCS के केस में अभी तक ऐसा कोई क्लैरिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आया है, और कोई और कंटेक्स्ट के अंदर जब TCS का कोई और पास्ट में जो क्लैरिफिकेशन आया था उसको अगर बेस लेके चले तो शायद गवर्नमेंट का ये थॉट हो सकता है कि इट हैज टू बी इंक्लूसिव ऑफ GST कंपोनेंट, यानी टोटल अमाउंट विथ GST वाला बिल रहेगा उसके ऊपर TCS लग सकता है। जब तक क्लैरिटी नहीं आती है, इट इज ऑलवेज बेटर टू एयर ऑन द कंजर्वेटिव साइड, सेफर साइड, और इसलिए आपको शायद गिनती करते समय GST कंपोनेंट को भी ध्यान में लेना चाहिए।
TCS collected need not be returned in case of sales return. अगेन इसके ऊपर कोई खास क्लैरिटी लॉ में नहीं है, पर एक बार आपने सेल किया, पैसा भी आ गया, उसके साथ आपने TCS कलेक्ट करके भर भी दिया, कल को वो सेल्स रिटर्न होता है और आपको अमाउंट रिफंड करने की नौबत आती है, तो नॉर्मली वो केस में आप TCS का कोई रिफंड क्लेम करके उनको कस्टमर को वापस नहीं दे पाओगे। इसलिए TCS जो भी आपने भर दिया है वो आपको रिफंड करने की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ सेल्स रिटर्न। द अदर पार्टी विल बी एबल टू क्लेम क्रेडिट फॉर दैट TCS इन एनी केस इन देयर ओन रिटर्न ऑफ इनकम जब वो फाइल करेंगे, इसलिए ये अमाउंट कहीं पे जाता नहीं है, वो क्रेडिट ही मिलता है। For the purpose of calculating threshold limit of 50 lakhs, all sales made to the buyer under single pen need to be considered and not GST and vice sales. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखने की बात। अभी ये कैलकुलेशन कैसे होगा, इसका ये एक एग्जांपल है, क्योंकि जो पिछली स्लाइड्स में मैंने बताया ये काफी कंफ्यूजिंग है। 1 अप्रैल से क्या देखना है, 1 अक्टूबर से क्या देखना है, थ्रेशोल्ड अमाउंट 50 लाख का कैसे गिनना है। सो आई हैव ट्राइड टू पुट दिस इन फॉर्म ऑफ अ सिंपल एग्जांपल। मान लेते हैं कि कोई कस्टमर का आपका ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2020 का 30 लाख है, फिर 1 अप्रैल 20 से लेके 30 सितंबर 20 तक 35 लाख का नया सेल्स हुआ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड पेमेंट टोटल आपको 30 लाख का मिला है। अभी अक्टूबर आ गया और अक्टूबर में आपने नया 20 लाख का माल बेच दिया, पेमेंट अक्टूबर में आपको 30 लाख का मिला और नवंबर में 10 लाख का मिला। तो जब आप TCS अक्टूबर और नवंबर का गिनोगे तो कितना अमाउंट पे TCS लगेगा? सो दैट विल बी 10 lakhs इन अक्टूबर एंड 10 lakhs इन नवंबर। ये 10 lakhs अक्टूबर में कैसे आया अपन देखें तो टोटल अमाउंट आपको अक्टूबर तक कितनी मिली है, तो 60 lakhs मिली है। 30 lakhs इज बिफोर 1 अक्टूबर एंड 30 lakhs इज ड्यूरिंग अक्टूबर, यानी टोटल आपको 31 अक्टूबर के दिन में अगर आप देख रहे हो तो यू हैव रिसीव्ड 60 lakhs। उसके सामने 50 लाख का एग्जेम्पशन लिमिट है, तो 10 लाख आपको अमाउंट है जिसके ऊपर TCS भरना है। नवंबर में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपका एग्जेम्पशन लिमिट ऑलरेडी यूटिलाइज हो चुका है, तो जो भी 10 lakhs आपको नवंबर में मिलेंगे उसके ऊपर TCS लगेगा। TCS की कंप्लायंसेस राइट ढंग से ना करने से क्या पेनल्टीज हो सकती है, कंप्लायंसेस क्या करना है उसके रिलेटेड बात करें तो TCS आप जो भी कलेक्ट करोगे 7 दिन के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच इट इज कलेक्टेड, 7 दिन में आपको डिपॉजिट करना है गवर्नमेंट ट्रेजरी में। फेलियर टू डू दैट विल अट्रैक्ट इंटरेस्ट एट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ, यानी 1% का इंटरेस्ट है। एवरी कलेक्टर हैज टू फर्निश अ क्वार्टरली स्टेटमेंट, एक TCS का रिटर्न फाइल करना है जो एंड ऑफ क्वार्टर से 15 दिन के अंदर करना है। और उसके पहले अगर डिलेड आपका इंटरेस्ट आ रहा है, आपने पेमेंट डिले किया है, तो वो इंटरेस्ट भरने के बाद आप TCS रिटर्न फाइल कर सकते हो। अगर रिटर्न का टाइम से फाइल नहीं किया है तो पर डे की 200 रुपीज की पेनल्टी है और दैट विल कंटिन्यू टिल द टाइम आप वो कंप्लायंस फिनिश करते हो। उसके अलावा पेनल्टी लगेगी जो मिनिमम 10,000 रुपीज है और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज की लगेगी, ओवर एंड अबव ये पर डे की जो पेनल्टी है। ओके, गोइंग फॉरवर्ड इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स अंडर इनकम टैक्स लॉ। इसमें भी अभी एक इनकम टैक्स अमेंडमेंट बिल जो पार्लियामेंट में प्रेजेंट हुआ था और काफी लोगों को एक कंफ्यूजन था कि काफी डेट एक्सटेंड हो गई है टिल 31 मार्च 2021। However, that is not the case और इसलिए यहाँ पे रखने की ये जरूरत पड़ी है। तो ITR फाइलिंग फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 विच मीन्स 31 मार्च 2020 का रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट रहेगी 30 नवंबर विच वाज अनाउंस्ड ऑलरेडी। ऑडिट रिपोर्ट सबमिशन इज 31 अक्टूबर। Assessment proceedings AY 18-19 will be 31 March 21. Assessment proceedings for AY 2019-20 19-20 के साल के लिए assessment proceedings अगर चालू है तो due date will be 30th September 21. Payment of installment of Vivad Se Vishwas scheme will be 31st December 2020. Going forward to a very important subject जो specified financial transactions है। गवर्नमेंट बहुत ही अलग अलग सोर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की मैकेनिज्म दे हैव क्रिएटेड सो दैट वो सब इंफॉर्मेशन के ऊपर से दे कैन आइडेंटिफाई हु आर द टैक्स पेयर्स हु आर एस्केपिंग द टैक्स नेट। तो जो भी रिस्पेक्टिव
ट्रांजैक्शन जिसके साथ होता है उनको ये इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट को सबमिट करनी रहेगी। ये नए जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस अनाउंस हुए हैं, हालांकि उसकी डेट अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो कुछ टाइम में वो किक इन हो जाएगा, पर आपके ध्यान में रहना चाहिए। सो पेमेंट्स टू होटल्स अबाउट 20,000, आप होटल में 20,000 से ज्यादा का पेमेंट करोगे तो होटल इज सपोज टू गिव दैट इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट, और वो इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट विल कंपेयर विद द इंफॉर्मेशन यू हैव फर्निश्ड विथ योर रिटर्न ऑफ इनकम, ऑडिट रिपोर्ट वगैरह में, और वो पेमेंट अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है देन इट कैन बी अ कॉज ऑफ इंक्वायरी, स्क्रूटिनी या सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। So 20,000 payment to hotels, payment of property tax about 20,000, payment of health insurance premium यानी मेडिक्लेम का प्रीमियम 20,000 के ऊपर हो, payment of rent above 40,000, payment of life insurance premium above 50,000, electricity consumption above 1 lakh, payment of educational fees or donation above 1 lakh per annum, purchase of jewelry, white goods, painting, marble, etc. above 1 lakh, डिपॉजिट और क्रेडिट इन नॉन करंट अकाउंट यानी कि सेविंग अकाउंट्स में 25 लाख से ज्यादा की आप डिपॉजिट करते हो, या कोई भी क्रेडिट आता है, किसी का चेक आ जाए वो भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। डिपॉजिट और क्रेडिट इन करंट अकाउंट अबाउ 50 lakhs, डोमेस्टिक बिजनेस एयर ट्रैवल और फॉरेन ट्रैवल। डोमेस्टिक के केस में बिजनेस क्लास में आप ट्रैवल करते हो तो वो इंफॉर्मेशन ये स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एसएफटी में जाएगी, पर फॉरेन ट्रैवल के केस में वेदर इट इज बिजनेस क्लास और इकोनॉमी क्लास, हर एक टाइप का ट्रैवल विल गो इन द एसएफटी। शेयर ट्रांजैक्शंस, डीमेट अकाउंट्स जितने भी ओपन हुए हैं, बैंक लॉकर्स, इसकी भी इंफॉर्मेशन एसएफटी में जाएगी। Coming to equalization levy on e-commerce transactions, so ये 1 April 2020 से kick in हो गया था। There is a 2% equalization levy which is applicable on following e-commerce operators. So any overseas e-commerce platform या operator who is selling goods online, so online sell of goods, online provision of services, facilitation of online sale of goods or provision of services or both, or any combination of the above activities. So अपनी जेमिन ज्वेलरी इंडस्ट्री की बात करें तो दिस इश्यू हैड कम अप, काफी जो रफ माइनिंग कंपनीज है वो ऑनलाइन टेंडर्स या ऑप्शन से रफ सेल करती है, तो उसके ऊपर भी दे आर सपोज टू कलेक्ट 2%, so that is leviable to this equalization levy of 2%. इसके अंदर the council and other organizations have represented to the government, and the finance minister had also categorically sort of announced, या एक उन्होंने comment भी दी है कि जेमिन ज्वेलरी इंडस्ट्री रफ डायमंड के ऊपर ये नहीं लगना चाहिए, हमारा इंटेंशन वो नहीं है। हमारा इंटेंशन जो अमेजोन टाइप की कंपनीज के ऊपर ये इक्वलाइजेशन लेवी लगाने का है। However, till now, no specific circular or notification has been issued exempting equalization levy on such transaction, और इसलिए आज की डेट में भी ये 2% levy applicable हो रहा है। Going forward, hopefully this should get resolved. So equalization levy में क्या क्या आता है? So it is applicable for supply of goods or services from a non-resident company यानी foreign company to a person who is resident in India, even to non-residents in certain circumstances, या फिर person buying goods or services using IP address in India। ये 3 कंडीशन के केस में ई कॉमर्स जो ट्रांजैक्शंस रहेंगे उसके ऊपर 2% इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा, एक्सेप्ट फॉर कुछ एक्सक्लूजन्स दिए गए हैं। तो अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट है और वो परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट थ्रू गुड्स का सेल या सर्विसेज का सप्लाई हो रहा है, in that case equalization levy will not be applicable. Where equalization levy at 6%, ये 3 साल पहले गवर्नमेंट had already introduced the equalization levy scheme in case of advertisement and certain services, और उसके अंदर 6% का already levy लगा हुआ है। So in those cases ये 2% वाला levy नहीं applicable होगा। और turnover of e-commerce operator from online sales और supply जो है वो less than 2 crores है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर,
तो भी ये 2% लेवी एप्लीकेबल नहीं होगा. In all other circumstances, 2% levy will be applicable. Okay, coming now to the GST aspects. Again, starting first with important updates, important due dates in GST. So last date to claim or reverse the input tax credit or issue debit note, credit note for the transactions of financial year 2019-20 का है, वो 30th September 2020 रहेगा. That is till the due date of filing of GST return of September 2020. GSTR 9 and 9C of financial year 2018-19 का 30th September 2020. फाइलिंग ऑफ पेंडिंग जीएसटी रिटर्न्स ऑफ जुलाई 17 से लेके अगस्त 20 तक का विथ रिड्यूस्ड लेट फीस ऑफ 500 पर रिटर्न अगेन 30th सितंबर 2020. ये जितने भी 30th सितंबर 2020 की डेडलाइंस है उसके रिलेटेड काफी रिप्रेजेंटेशंस गवर्नमेंट के पास गए हैं टू एक्सटेंड दिस डेट एटलीस्ट बाय 1 month and hopefully that should happen, but as of now that has not happened. तो अभी की आज की डेट में बात करें so these are the due dates. So if you are not complied, please do that. You have 3-4 days to finish these compliances. Applicability of e-invoicing system 1st October 2020. Again इसके related बहुत expectations भी थी, बहुत rumors भी थे कि ये date extend करके 1st April 21 की गई है, पर that is not the case as of now. As of today ये extend नहीं हुई है, which means that 1st October 2020 this will kick in. In case of goods sent on approval and time period of 6 months is expiring between 20th March 2020 to 30th October 2020, उस केस के अंदर वो 6 महीने का पीरियड भले ही एक्सपायर हो रहा है इन बिटवीन में, ड्यू डेट will be 31st October 2020. This relaxation has been given in line with COVID-19 relaxations. In case of GST number is surrendered, filing of final return in GSTR 10 with reduced late fee of 500 rupees, उसके लिए 31st December 2020 will be the due date. Applying rule 36(4) in GSTR 3B of September 2020, जो नया ये रूल आया था जिसके अंदर combined effect of 110% ITC of GSTR 2A for the month of February 20 to September 20 has to be given. तो उसके रिलेटेड अगेन इन GSTR 3B ऑफ सितंबर 2020 का आप जब अक्टूबर में फाइल करोगे दैट विल बी द ड्यू डेट. So coming now to this again very important point of e-invoicing in GST, which is kicking in from 1st October 2020. This is applicable for companies with turnover exceeding 500 crores. However, इसमें सबसे बड़ा कैच ये है और काफी लोगों को ये शायद नहीं पता है कि because this is GST law, जीएसटी के अंदर इंट्रा ब्रांच ट्रांसफर्स भी अगर 2 स्टेट में हो रहे हैं दैट इज कंसीडर्ड एज अ टर्नओवर एज अ सप्लाई, तो उसका अमाउंट भी गिना जाएगा. सो एनी इंटर ब्रांच ट्रांजैक्शन अंडर सेम पैन नंबर बट डिफरेंट जीएसटी नंबर्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ दिस टर्नओवर ऑफ 500 crores, विच मीन्स कि एक्चुअल आपके ऑडिट रिपोर्ट इनकम टैक्स के अंदर भले ही 300 करोड़ का टर्नओवर हो फिर भी शायद आप इसमें फॉल हो सकते हो. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने की जरूरत है. whoever is missing this point और आपको पता है, please do look into this. This is very important. SEZ units are exempted from e-invoicing. So SEZ units को e-invoicing का compliance करने की जरूरत नहीं है. पर all other units, even if they are exporting or any supplies that are made to SEZ units also are subject to e-invoice. तो अगेन काफी लोगों को ये था कि शायद एक्सपोर्ट्स के ऊपर e-invoicing नहीं है, पर ऐसा नहीं है. एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी e-invoicing is compulsory. E-invoicing cannot be edited. एक बार आपने e-invoice जनरेट कर दिया उसके बाद आप एडिट नहीं कर सकते हो. It can be cancelled within 24 hours. इन विच केस वो पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर आपका फिर यूज नहीं होना चाहिए. इट इज लाइक अ चेकबुक. आप कोई चेक लिखते हो और उसके बाद वो चेक कैंसिल करते हो तो वो चेक फिर से यूज नहीं हो सकता. सिमिलरली ई इनवॉइस के केस में एक बार आपने ई इनवॉइस जनरेट करके सबमिट कर दिया है, फिर यू कैन नॉट एडिट इट. यू कैन डिलीट इट एंड दैट टू विद इन 24 आवर्स. उसके बाद कैंसिल नहीं हो सकता है. और
इन केस आपने अगर कैंसल 24 आवर्स में किया भी है तो वो इनवॉइस नंबर आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर भी लॉक हो जाएगा, वो कैंसल रहेगा, वो फिर से यूज नहीं हो सकता है। ये पूरा ई इनवॉइसिंग का मैकेनिज्म के लिए बहुत ऑटोमेशन की जरूरत रहेगी टू जनरेट द ई इनवॉइस। तो आपकी जो ईआरपी सिस्टम रहेगी और जीएसटीएन पोर्टल जो रहेगा उसके साथ वो ऑटो लिंकेज रहना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे ऑलमोस्ट रियल टाइम लेवल पे आपको ये कंप्लायंस करने हैं, विच विल नॉट बी पॉसिबल टू डू मैन्युअली। तो इसके रिलेटेड इफ कंपनीज हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, ऑलरेडी आपने अपना ईआरपी या टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस नहीं किया है, देयर आर ओनली अ वेरी फ्यू डेज विच आर नाउ रिमेनिंग, सो प्लीज डू दिस एज सून एज पॉसिबल। अगेन जो फर्स्ट पॉइंट के कंटेक्स्ट में मैं ये टर्नओवर 500 करोड़ में जो आपका 2 स्टेट में ब्रांच है और जीएसटीएन नंबर अलग है तो एप्लीकेबल टर्नओवर लिमिट में आ जाता है, उतना ही नहीं, अगर सूरत से आपका प्रोसेसिंग होके डायमंड्स बॉम्बे जा रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो ई इनवॉइसिंग आपको जनरेट करनी पड़ेगी और ई इनवॉइसिंग आपको ऑनलाइन सबमिट करनी पड़ेगी, अदरवाइज इवन ड्यूरिंग द ट्रांजिट दोज गुड्स कैन बी स्टॉप्ड। अपार्ट फ्रॉम दिस वेरियस अदर जीएसटी अपडेट्स की बात करें, इंपॉर्टेंट जो रिसेंट अपडेट्स है, तो फर्स्ट इज जीएसटी पोर्टल हैज बीन लिंक्ड विद आइसगेट जो कस्टम्स का है, इनकम टैक्स का जो पोर्टल है, हर एक चीज अभी गवर्नमेंट ने लिंक कर दी है। देयर इज अ लॉट ऑफ फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पोर्टल टू अनदर, और उसमें कहीं पे भी अगर मिसमैच आ रहा है तो दैट विल लीड टू सम सॉर्ट ऑफ क्वेरी और इंक्वायरी। Linking of GSTR 1 and 3B is now possible through GSTR 2B. Bunching of refund applications across the financial years is now allowed. इसका मीनिंग ये है कि 2 फाइनेंशियल ईयर्स का आप एक सिंगल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, टोटल अमाउंट बंच करके। सो दिस इज अ वेरी वेलकम चेंज। Refund to be paid back with interest if export remittance is not received within RBI timelines. तो अगर कोई भी आपने ऑलरेडी रिफंड ले लिया है एक्सपोर्ट के ऊपर और अगर पेमेंट नहीं आता है बिटवीन आरबीआई की जो टाइमलाइंस होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम, ओरिजिनली 6 महीना हुआ करती थी बट बिकॉज ऑफ कोविड वो एक्सटेंड की गई है और कांस्टेंट आरबीआई टाइमलाइंस चेंज करते हैं, तो व्हाटएवर इज द टाइमलाइन फॉर द टाइम बिंग, अगर वो टाइमलाइन के हिसाब से आपका पेमेंट नहीं आता है और आपने रिफंड ले लिया है, यू विल हैव टू गिव इट बैक अलोंग विथ इंटरेस्ट। उसके बाद ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन शुड नॉट बी हायर देन 1.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ अलाइक गुड्स सोल्ड लोकली। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, हालांकि ये गवर्नमेंट का ये रूल या ये प्रोविजन लाने का मेन रीजन ये था कि कई बार दे हैव सीन कि एक्सपोर्ट का ओवर वैल्यूएशन हो रहा था, companies were overvaluing the exports in order to get benefits under various export promotion schemes, कोई ना कोई चीज का रिबेट वगैरह मिलने के लिए या रिफंड जीएसटी का क्लेम करने के लिए ओवर वैल्यूएशन हो रहा है, और उसको चेक करने के लिए दे पुट दिस प्रोविजन कि अगर वो सेम टाइप के गुड्स लोकली इफ इट इज सोल्ड एट से 100 रुपीज या $100, देन द एक्सपोर्ट वैल्यू शुड नॉट बी 150। और ये प्रूव करने के लिए काफी डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज को रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम डायमंड के अंदर वी नो कि इवन इन द केस ऑफ सेम CSSP कलर शेप साइज प्योरिटी सेम है, इन स्पाइट ऑफ दैट देयर कुड बी सो मेनी अदर पैरामीटर्स जिसकी वजह से वैल्यू में बहुत बड़े चेंजेस हो सकते हैं। इवन लेबोरेटरी GI है या IGI है, उसकी वजह से भी चेंज इन वैल्यू हो सकती है। सो हाउ डू यू रियली बेंचमार्क एंड प्रूव दैट इट इज विद इन द 1.5 टाइम्स द वैल्यू is a question which can really create problems, और ये लेके again various companies associations have represented to the government and hopefully कुछ इसमें relaxation आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो you need to be prepared for your queries और documentation अच्छे से रखने की जरूरत रहेगी। उसके बाद एक जो एडवांस रूलिंग आया था उसकी वजह से काफी कंफ्यूजन था, which later on the board has clarified कि reverse charge mechanism will not be applicable on director's remuneration in case the director is an employee of the company। यानी डायरेक्टर अगर एग्जीक्यूटिव कैपेसिटी में है, if he is working for the company and taking remuneration, तो वो केस में GST एप्लीकेबल नहीं रहेगा RCM के अंदर। One time relaxation has been given for pending IGST refunds under
विथ पेमेंट ऑफ IGST, तो उसके अंदर वन टाइम रिलैक्सेशन भी दिया गया है। few things which the government is contemplating, जिसके ऊपर कमिटी वर्क कर रही है और which may be relevant to the gems and jewelry industry are issue about e-way bill. So e-way bill के ऊपर काफी वो लोग सोच रहे हैं, and applicability of RCM on purchase of old jewelry or gold or diamonds. So all this is under consideration, and if at all it comes, it might hamper the business model of quite a few businesses in the gems and jewelry industry. और इसलिए अभी से उसके रिलेटेड यू नीड टू प्रिपेयर इन केस वो टाइप के ट्रांजैक्शंस आपके बिजनेस में है। कमिंग टू द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो ये मेन इश्यू का बैकग्राउंड ये है कि 26 जनवरी 2018 के पहले, एज यू ऑल नो, डायमंड्स के ऊपर 3% GST का रेट था और सडनली उसको रिड्यूस करके 0.25% किया गया था फ्रॉम जनवरी 2018, एंड बिकॉज ऑफ विच उसके बाद बहुत सा ITC एक्यूमुलेशन हो रहा है। और वो टाइम पे भी बिकॉज पीपल, कोई ट्रेडर है, दे वुड हैव परचेज डायमंड्स बाय पेइंग 3% एज GST, और ये डेट के बाद सडनली रेट 0.25% हो गया, तो वो ही सेम डायमंड्स जब वो आगे बेचने जाए तो they could recover only 0.25%, and therefore 2.75% का जो ड्यूटी ऑलरेडी पे हो चुका था वो ITC रिफ्लेक्ट होता रहे, and over the years that amount has been becoming bigger and bigger. Now लॉ के अंदर जो GST का लॉ है उसमें अगर इनपुट जो भी गुड्स है उसका अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में फॉल होता है तो देयर इज अ प्रोविजन फॉर रिफंड। However, in case of services ऐसा नहीं है, यानी GST लॉ के अंदर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के जो प्रोविजन है उसके अंदर गुड्स के अंदर अगर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर एप्लीकेबल हो रहा है तो रिफंड मिलेगा, ऐसा कहा गया है। और सर्विसेज के अंदर कहा गया है कि रिफंड नहीं मिल सकता है इनपुट सर्विसेज के लिए। और एज वी ऑल नो कि जेम एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर बहुत सी सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज है, whether it is laboratory charges, whether it is your legal professional fees से लेके रेंट अगर पेमेंट हो रहा है, ये सब चीज के अंदर या तो 18% या एटलीस्ट 0.25% से ज्यादा GST एप्लीकेबल है। इवन ऑन जो जॉब वर्क चार्जेस है उसके ऊपर हायर रेट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो एक्यूमुलेशन का रीजन है। However, recently the Gujarat High Court in one of the cases, VKC Footsteps है और काफी उसके साथ bunched up petitions थी, उसके अंदर the Gujarat High Court has held that even for input services under inverted duty structure, refund should be allowable and should be allowed. The government has challenged this. तो ये गुजरात हाई कोर्ट के डिसीजन के सामने ऑलरेडी गवर्नमेंट हैज गॉन एंड अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, बट टिल नाउ सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्टे नहीं ग्रांट किया है, और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट फाइनल डिसीजन नहीं देती है तब तक दिस विल बी एरिया प्रोन टू लिटिगेशन। वंस द सुप्रीम कोर्ट व्हाटएवर इट प्रोनाउंसेस एज द फाइनल जजमेंट, दैट विल बी एप्लीकेबल टू एवरीवन। इन द मीन टाइम अगेन एक दूसरा लैंडमार्क इंपॉर्टेंट जजमेंट आया है, वो मद्रास हाई कोर्ट का है। हालांकि इन दिस केस it is a negative judgment against the industry, against the SSC, तो काफी उसमें भी petitions bunch up होके hearing हुआ है, और उसमें the SSCs have claimed कि जो GST का particular provision जो है which restricts refund under the inverted duty structure for services is constitutionally not valid। ऐसा रीट पिटीशन और स्पेशल लीव पिटीशन फाइल किया गया था, बट द मद्रास हाई कोर्ट हैज रूल्ड अगेंस्ट दैट, एंड इट हैज sort of approved of the constitutional validity of the provision, and it has said that the government has all the rights to differentiate between input goods and input services because both are very different category of inputs। तो अगर मद्रास हाई कोर्ट के जजमेंट के ऊपर से चले तो अभी तक जो हो रहा था ITC का जो अक्यूमुलेशन वो कंटिन्यू रहेगा, और आप थोड़ा उसका रिफंड नहीं मिल पाएगा।
सो इन दिस केस क्या करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या है? So again, this is our view. A lot of questions have come in this regards, and a lot of people have been calling over the last 1 or 2 months relating to this. तो पहले तो ये किसके लिए बात है, तो anyone, any trader, manufacturer or service provider having inputs of higher rate than the output supplies. आपका ITC accumulate हो रहा है बिकॉज इनपुट के ऊपर आपने ज्यादा GST पे किया है और आउटपुट का रेट कम है. Refund application normally has to be filed within 2 years from the due date of filing GSTR 3B. तो ये टाइमलाइन के हिसाब से आपको रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है. पर आपको एप्लीकेशन रिफंड की फाइल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, उसके पहले यू नीड टू रियली डू अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ कितना आपका ITC है, उसमें इनपुट सर्विसेज रिलेटेड कितना है, इनपुट प्रोडक्ट रिलेटेड या गुड्स रिलेटेड कितना है, 2 इयर्स के अंदर का कितना है और बियॉन्ड 2 इयर्स का कितना है. ये पूरा एनालिसिस पहले करने की जरूरत रहेगी. मैंने जैसे बताया, जब तक सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं देती है या गवर्नमेंट इटसेल्फ इसमें कोई रूल चेंज या लॉ में चेंज नहीं लाती है, तब तक दिस टोटल मैटर इज प्रोन टू लिटिगेशन. However, it is advisable कि अगर आपका सब्सटेंशियल अमाउंट ITC का अक्यूमुलेटेड है और अगर ये एनालिसिस करने के बाद विद इन 2 इयर्स के पीरियड में ITC का क्लेम ज्यादा है, देन यू शुड फाइल अ रिफंड एप्लीकेशन. क्योंकि अगर 2 इयर्स हो जाते हैं तो यू विल मिस द चांस टू फाइल दैट रिफंड एप्लीकेशन. सो वेदर और नॉट द गवर्नमेंट और द डिपार्टमेंट अप्रूव्स ऑफ इट, एटलीस्ट ऑन योर साइड एज एन SSC, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू फाइल द क्लेम. हालांकि आप अगर क्लेम फाइल करते हो तो उतनी क्रेडिट जितनी आपने रिफंड क्लेम में डाली है विल गेट फ्रीज्ड, विल गेट स्टक अप टिल द टाइम फाइनल इसके ऊपर कंक्लूजन नहीं आता है. तो ये आपको ध्यान में रख के एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए. इन ऑल प्रोबेबिलिटी द फील्ड फॉर्मेशन, द GST डिपार्टमेंट विल रिजेक्ट योर एप्लीकेशन, इन विच केस देन यू हैव टू गो टू द नेक्स्ट लीगल रिकोर्स जो अवेलेबल है. Either you can file an appeal to the appellate authority या tribunal, or you can straight away approach the High Court by filing a special leave petition या writ petition. So all in all, ITC related you need to do a proper analysis. वो analysis में ITC जो है वो input services की वजह से है कि goods की वजह से, within 2 years का कितना है और beyond 2 years का कितना है, और वो amount अगर आपकी freeze हो जाती है फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम तो उसकी वजह से आप जो यूटिलाइजेशन कर रहे हो उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है. ये सब चीज का एनालिसिस करते हुए इट इज एडवाइजेबल टू फाइल द रिफंड एप्लीकेशन. हाउएवर, प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट द रिफंड टू बी ग्रांटेड. GST डिपार्टमेंट आपके रिफंड की एप्लीकेशन रिजेक्ट करे ऐसी पूरी संभावना है. देन यू विल हैव टू परस्यू इट लीगली आइदर इन द एपेलेट ट्रिब्यूनल और द हाई कोर्ट. इन बिटवीन सुप्रीम कोर्ट का अगर फेवरेबल डिसीजन आ जाता है, then in any case you will automatically get that refund. Again, बहुत सी हमें queries ये आ रही थी during this session के मेल में कि ITC accumulation ही ना हो या कम हो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं. So again, वो केस टू केस डिपेंड करेगा, आपके फैक्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली आपका बिजनेस मॉडल जो है वो चेक करते रहो, एनालाइज करो ऑन अ क्वार्टरली बेसिस कि वो मॉडल में तो कहीं पे ऐसा नहीं है ना कि बिकॉज ऑफ द मॉडल नॉट बीइंग एफिशिएंट एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसा तो नहीं है ना. RCM लायबिलिटी जो होती है शुड बी इन एंटिटीज विच जनरली मेक्स द पेमेंट थ्रू चलन सो दैट डुप्लीकेशन ऑफ पेमेंट कैन बी मिटिगेटेड. तो अगर आपकी सूरत में एक ब्रांच है, बॉम्बे में एक ब्रांच है और आपके कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे है जिसमें RCM लायबिलिटी आती है, देन इट शुड बी बिल्ड इन द ब्रांच वेरेवर यू आर एक्चुअली मेकिंग द पेमेंट थ्रू द चलन सो दैट डुप्लीकेशन नहीं होगा. उसके बाद अगर आप जॉब वर्क के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग करवाते हो तो आपके जो डायमंड प्रोसेसिंग अग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं उसके अंदर आप ये प्रोविजन रख सकते हो, स्पेशली फॉर अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स जो जॉब वर्क को स्पेस प्रोवाइड करते हैं, मशीनरी प्रोवाइड करते हैं. इन दैट केस यू कैन चार्ज रेंट फॉर दैट प्रीमाइसेस और मशीनरी, एंड दैट रेंट विल बी चार्ज्ड एट 18%.
सो जो जॉब वर्कर आपको प्रोसेस करके डायमंड देता है और उसके ऊपर जो जीएसटी लगता है, उसके सामने द जॉब वर्कर विल बी एबल टू सेट ऑफ or claim the ITC paid for the rent of premises and machinery, and that will save on the total outflow at the job workers end, which will automatically reduce your own claim for ITC. उसके बाद मंथली बेसिस पे यू शुड मॉनिटर योर एक्सपोर्ट रेशियो, क्योंकि जो रिफंड का क्लेम है इज बेस्ड ऑन द प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट टर्नओवर टू टोटल टर्नओवर। तो एक्सपोर्ट का रेशियो ऐसा भी कई लोग करते हैं या कर सकते हैं कि आप अगर मान लेते हैं कि 95% एक्सपोर्ट ही होता है, थोड़ा बहुत ही आपका लोकल सेल्स है, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग लोकल सेल्स एवरी मंथ, अगर आप कंसाइनमेंट पे एक बार दे दो और इनवॉइस कैन बी रेज्ड लेटर ऑन, सही में सेल्स आप नेक्स्ट मंथ में बुक कर सकते हो अगर दैट इज अ पॉसिबिलिटी। एंड फॉर अ फ्यू मंथ्स देयरफॉर पूरा आपका बुक्स का टर्नओवर विल बी ओनली 100% एक्सपोर्ट्स, इन विच केस पूरा आपका एक्यूमुलेटेड अमाउंट विल बी रिफंडेबल। तो एक्सपोर्ट रेशियो शुड बी प्रॉपरली एनालाइज्ड। Capital goods should be purchased in the entity which usually makes the payment through challans. तो अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि आप जहां पे पेमेंट चलन थ्रू करने की जरूरत पड़ती है उधर आप कैपिटल गुड्स परचेज करो तो उसकी जीएसटी वहां पे आएगी। हालांकि इट इज इंपॉर्टेंट टू ऑल्सो नोट कि एक्सपोर्ट्स करने पे जो रिफंड कैपिटल गुड्स के आईटीसी के ऊपर रिफंड नहीं मिलता है, सो दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट। काफी लोगों को ये शायद पता नहीं रहता है। Before filing refund applications for 2-3 months, ensure कि you do a proper permutation combination of multiple tax periods and multiple scenarios so that optimum GST refund आप निकाल सको। तो मंथ ऑन मंथ या 2 महीने पे आप रिफंड एप्लीकेशन करो, उसकी जगह पे आप थोड़े पीरियड का अक्यूमुलेटेड करके एक साथ कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ द केस, टू एंश्योर कि हाईएस्ट अमाउंट आप क्लेम कर पाओ। तो ये थोड़े बहुत थॉट्स है, काफी चीज के ऊपर केस टू केस, फैक्ट्स टू फैक्ट्स प्लान करना पड़ेगा आपको। विद इन द लॉ रह के आपको जो प्रोविजंस है उसका आप यूज करके प्लानिंग कर सकते हो। एनी अदर वे टू डू दैट इलीगली वुड बी जीएसटी अवॉइडेंस, विच कैन लीड टू अ लॉट ऑफ पेनल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। बट लीगली जो प्रोविजंस एप्लीकेबल है उसके दायरे में रह के आप अगर कोई प्लानिंग करना चाहते हो तो दैट इज पॉसिबल एंड फीजिबल। So I think this brings us towards the end of the session. There were a few other questions and answers, questions which probably were not addressed during the flow of the presentation, और इसलिए हमने लास्ट में मैंने ये queries add कर दी है। I'll take up each of this and try to address them. और उसके बाद अगर चैट बार में किसी ने और कोई query डाली है, if time permits, we still have maybe 7-8 more minutes. So first था कि e-invoice required at time of consignment, exports or sale on approval basis. So the answer is no. As we already discussed, e-invoicing is on actual tax invoice आप जो करते हो, again eligibility हो तो 500 crore के टर्नओवर के ऊपर अगर आप फॉल करते हो तो e-invoice करना है, और उसके अंदर एक्चुअल जब इनवॉइस रहेगी वो टाइम के इनवॉइस करना है, नहीं के कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट के स्टेज पे या सेल ऑन अप्रूवल के स्टेज पे। इट इज एट द टाइम ऑफ एक्चुअल टैक्स इनवॉइस या सेल इनवॉइस। सेकंड क्वेश्चन वाज e-invoicing module does not have provision for entering TCS, so what to do? अगेन ये एक छोटी सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी है। e-invoice का अभी जो मॉड्यूल है उसके अंदर कहीं पे भी TCS का प्रोविजन नहीं है। अगेन TCS की जो 0.075% की हमने जो बात की, वो आप कैसे बायर को या कस्टमर को चार्ज करोगे, तो देयर आर 2 मेथड्स। या तो आप इनवॉइस में ही TCS ऐड करके इनवॉइस दे सकते हो, या डेबिट नोट इश्यू अलग से कर सकते हो। ऑलरेडी सेल्स विच हैव हैपेंड बिफोर 30th सितंबर, उसमें तो आपने TCS ऐसे भी ऐड नहीं किया होगा, तो अभी आपको डेबिट नोट से करना पड़ेगा। So both options are anyway available. Now when you enter the data on the e-invoicing module, इसलिए ये TCS दिखाने की जरूरत नहीं है। That can be there on your physical invoice, that can be through a debit note, but it will not be on the e-invoicing module because the e-invoicing module doesn't have the TCS row.
गोइंग फॉरवर्ड वो लोग ये भी ऐड कर सकते हैं, पर आज की डेट में वो अवेलेबल नहीं है, पर उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज whether inward remittance of funds from abroad in case of individuals are also liable for TCS. Answer is no. TCS is only on outward remittance. आप LRS के अंदर इंडिया से बाहर फंड्स भेजते हो, सिर्फ उसके ऊपर TCS लगेगा। अगर बाहर से कोई इंडिया में फंड आता है, मान लेते हैं किसी रिलेटिव के पास से गिफ्ट आ गया, या कोई NRI इंडिया में शिफ्ट होके अभी रेसिडेंट इंडियन हो गए पर उनके फंड्स बाहर पड़े हैं, और वो फंड्स अगर इंडिया में लेके आते हैं तो वो इनवर्ड रेमिटेंस के ऊपर कोई TCS नहीं है। ऑल्सो प्लीज नोट दैट TCS इज ओनली ऑन LRS, यानी अगर कोई आपकी कंपनी है और आप फॉरेन में कोई सब्सिडियरी कंपनी फॉर्म करते हो और उसमें अगर पैसा बेचते हो, आउटवर्ड रेमिटेंस करते हो एज इक्विटी और एज लोन, in that case TCS is not applicable. It is only applicable in case of individuals who are remitting funds outside under the liberalized remittance scheme. Next question was, do you think industry should have 1% as GST on diamonds instead of 0.25% for ITC absorption? Yes. So इसके related बहुत discussions पिछले 1-1.5 साल में हुआ है। अगेन वेरियस एसोसिएशन लेवल पे, GJPC लेवल पे ये डिस्कशंस काफी हुए हैं, काफी स्टडीज भी हुए हैं कि अगर GST का रेट डायमंड्स के ऊपर 0.25% से बढ़ा के अगर 1% हो जाता है तो बहुत सी ITC जो आज अनएक्यूमुलेटेड रह जाती है वो आप यूज कर पाओगे, एंड आइदर उसको रिफंड क्लेम कर पाएंगे एक्सपोर्ट पे, या फिर आप फर्दर जब सेल करते हो डायमंड्स को तो उसके अंदर वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इन एनी केस GST ऑन ज्वेलरी इज हायर, एंड देयरफॉर अगर 1% भी डायमंड के ऊपर होता है तो वो ज्वेलरी वालों के लिए दिक्कत नहीं है, दे विल बी इजीली एबल टू एब्जॉर्ब दिस बिकॉज द रेट ऑन GST रेट ऑन ज्वेलरी इज हायर। सो वी आर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि ये 1% होना चाहिए। द इंडस्ट्री रियली नीड्स टू कम टूगेदर और रिप्रेजेंट करना चाहिए। गवर्नमेंट के पास ये करवाना बहुत डिफिकल्ट भी नहीं होने वाला है, बिकॉज व्हेन यू आर सामने से चल के हम बोलते हैं कि आप रेट 0.25% से बढ़ा के 1% करो, देयर इज नो रीजन फॉर द गवर्नमेंट नॉट टू डू दिस। हाउएवर इसके रिलेटेड कंसेंसस इंडस्ट्री में होना जरूरी है। आई बिलीव आगे बिकॉज ऑफ सम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग a few people या एक segment of people were against this idea of increasing the GST rate to 1%. I think individually आप अपनी कंपनीज में देखें, अगर 1% होने से आपको अगर फायदा लग रहा है तो प्लीज represent to GJPC या send us your representations. We can combine all that together and then approach the council or the government and try for this. But in our view surely it is very very useful. उसके बाद एक क्वेश्चन था, हाउ टू इंटीग्रेट सॉफ्टवेयर विद ई-इनवॉइसिंग टू एंश्योर रियल टाइम इनवॉइस सबमिशन। सो अगेन ये मैंने ऑलरेडी थोड़ा आगे बोला, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि GSTN पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है, पूरा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है, और उसके साथ अगर आपका सॉफ्टवेयर इज नॉट इन सिंक, उसका अलाइनमेंट नहीं है, उसको इंटीग्रेट नहीं किया है, तो आप रियल टाइम बेसिस पे ये कंप्लायंस अच्छे से नहीं कर पाओगे, एंड देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्जेंटली गेट दिस डन। देयर आर अ लॉट ऑफ कंपनीज इंक्लूडिंग आवर ओन कंपनी विच आर आल्सो प्रोवाइडिंग ब्रिज सॉल्यूशंस, यानी आपका कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है उसके अंदर ऑलरेडी ई-इनवॉइसिंग की फंक्शनैलिटी या फैसिलिटी नहीं है, then this bridge software can come in between, which can extract the data, which can integrate with your software as well as with the GSTN portal and seamless ये execute हो सके, उसके related के softwares available है। So please if you have not already done this, please urgently ये करना चाहिए क्योंकि time is really very short, only a few days to go before these provisions kick in. So I think with this I come to the end of my session. We are just about in time. It is 5:13, 2 minutes to go. अगर कोई भी queries unaddressed है, I'm surely going to just open the chat box, और कोई important चीज अगर miss हो रही है, I'll try to cover that in the next minute or so.
बट इन एनी केस अगर कोई चीज छूट गई है या अलग से आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई फर्दर क्वेरी है, प्लीज फील फ्री टू राइट बैक टू मी. My email ID is neerav@astuteconsulting.com. Okay, let me now just quickly have a look at the chat. Okay, so there is a query. We are into trading business. Packing material is at 18%. It is an input. Final product is at 5%. Can we fall under inverted duty structure? Yes, you fall under the inverted duty structure. However, it is not just one material that you need to see. आपके अलग अलग प्रोडक्ट्स जितने भी गुड्स इनपुट में जाते हैं और उसके सामने फाइनल क्या है, उसके ऊपर से फैक्ट एनालिसिस करके you should do your calculation. You can submit a refund application अगर सही में आपके majority of products उसमें जा रहे हैं, you'll probably get the refund if you are exporting. In e-invoice we have to show piece-to-piece records or summary of all pieces. So ये question का like if you are currently already preparing your invoices on a piece-to-piece basis, अलग-अलग line item है, then you have to do that in the same fashion. अगर आप बल्क में बेचते हो, सिंगल लाइन आइटम से अगर आपकी इनवॉइस बनती है तो उस हिसाब से बनेगी. So it is similar to your current system. I think most of the other things, there are a few other queries, but I think Neerav bhai, thank yes. you. It was an excellent talk and lot of information. And આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને ઊંઘ ઉડી જાય એવું છે. So what I request that last time after the financial budget and the GST, you prepared the manual, which was a reckoner for everyone and helped all of us. So તમે આ કરો અને lest everybody send you the queries on the email. I'm sure there will be many, but you are the best person to reply everything. Thank you very much. Sure enough. Thank you so much, Mehul bhai and the entire BDB. I am really honored to be part of this session. One more thing, we have recorded this session and I'll be providing the link to BDB. So probably if you wish, you can get the recording of this session. Thank you. Thank you very much, Neerav bhai. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, participants. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Very much. Thank you. Thank you so much.